So good afternoon, everyone. Welcome you all in today's lecture. Today is the first lecture for your uh, Mathematics and Statistics Part 2. This is your textbook. You all must be having the PDF of this textbook. If not, I'll be sending you all. As we already know about Maths and Stats Paper 2, that Commerce Paper 2 is normally statistics based questions, chapters. I can tell you one thing that 12th standard maths 2 is more interesting than 11th standard maths 2. There were few topics in 11th standard, you know, which was not liked by students, but here in 12th standard, almost all chapters are very good and interesting. So this is the index page you can see here. There are total 8 chapters in maths 2. Commission, brokerage and discount, first chapter. Insurance and annuity, second chapter. Linear regression, third. Then time series, index number, linear programming, assignment problem and sequencing, and probability distribution. So these are in all 8 chapters which we are going to do it in maths 2. You all know maths 2 is for 40 marks in board examination. So for 40 marks, we have to study 8 chapters. Now my voice is clear and loud. Okay, fine. Students for chat, I'm using another device. Okay, so you can see the co-host right in the participant. Huh. So if you'll message me directly anything, I'll not be able to view that. And that is why I'm asking you to message in everyone. Okay, otherwise your questions will not reach to me. So these are the chapters, and today we will be starting with one of the simplest topic in maths too, and that is chapter number 5, index number. Okay, so let's go to the page number of index number. All of you open that. Okay, so this is our syllabus of index number. In this chapter, we are going to study about the definition of index number, types of index number, terminology and notation, construction of index number by two method, simple aggregate method, weighted aggregate method. Then we are going to study something about cost of living index number. There also we have two methods, finding them CLI by aggregate expenditure method and family budget method. And then lastly, use of the cost of living index number. So this is the entire syllabus which we are going to study. Now let us directly understand the definition of index number. So as you can see here, index number are defined in different ways by different experts. Some of the most popular definition of index number are given below. So, depending on experts, everyone have defined index number by their own way. So, very first one, an index number is a statistical measure of change in variable or a group of variable with respect to time, geographical location, or some other characteristics such as production, income, etc. So, what is index number?
Yes, it says that it is a statistical measure, a tool to measure changes in variable और a group of variables. वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है, ड्यू टू व्हाट, टाइम चेंज किया तो, राइट, जोग्राफिकल लोकेशन अगर चेंज किया तो, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग 10 o'clock का टेम्परेचर, आफ्टरनून 2 o'clock का टेम्परेचर, इवनिंग 6 o'clock का टेम्परेचर. सो वी आर मेजरिंग द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जोग्राफिकल लोकेशन मतलब अगर कोई महाराष्ट्र के गांव में कोई गन्ने की खेती कर रहा है, कोई मध्य प्रदेश के खेत में गन्ने की खेती कर रहा है, या कहीं जम्मू एंड कश्मीर में कोई अगर गन्ने की खेती करने का सोचेगा, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप. दैट इज द स्टडी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन इंडेक्स नंबर. सेकंड डेफिनेशन सेज an index number is used for measuring changes in some quantity that can be measured directly. Sometimes we also use index number to measure the quantity. Next, an index number is single ratio, usually expressed as percentage, that measures an average change in several variable between two different times. So it is a average change what it measures, okay, as an index number. So these are the few basic definitions of index number. Now there are few examples of index number. What we have heard about Nifty and Sensex, right? In a BC, in BSE. So what is Nifty? So the Nifty 50 index is a national stock exchange of India's benchmark, broad-based stock market index for the Indian equity market. So Nifty 50 index is national stock exchange of India's benchmark, broad-based stock market index for the Indian equity market. It represents the weighted average of 50 Indian companies. वो क्या करती है, 50 इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स को 13 सेक्टर्स में, एंड इज वन ऑफ द टू मेन स्टॉक इंडाइसेस यूज्ड इन इंडिया, द अदर बीइंग द बीएसई सेंसेक्स. तो वो 50 अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर क्या चेंजेस होता है उसको स्टडी करती है, उसको वो इवैल्यूएट करती है, वो निफ्टी होती है. वैसे ही सेंसेक्स एक दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स और सिंपली सेंसेक्स, इज अ फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ 30 वेल एस्टैब्लिश्ड. तो निफ्टी में 50 इंडियन कंपनीज के होते हैं और यहाँ पर 30 वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज का चेंजेस को स्टडी करते हैं. Now in our syllabus we have these are the 3 different types of index numbers we have: price index number, quantity index number and then value index number. Price index number क्या होता है? अगर price index numbers measure changes in the level of price in the economy. It compares the price of the current year with that of the base year to indicate the relative variation. It is a very good measure of inflation in the economy. तो अगर हमको इन्फ्लेशन कैसे मेजर करेंगे, तो 10 साल पहले वीट 1 kg का कितने का मिलता था और आज वीट 1 kg का कितना मिलता है. तो इसका मतलब आज के प्राइस को निकालने के लिए मैं कोई तो बेस ईयर डिसाइड करूंगा, यस सर नो, उस साल इतना था तो इस साल कितना है, तो वो जो चेंज मैं मेजर करूंगा उसको बोलेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर. वैसी क्वांटिटी में कि 10 साल पहले इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस होता था, आज उतना ही मैंने खर्चा किया लेकिन इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा हुआ कम हुआ, तो वो जो चेंजेस है उसको हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलते हैं. और जो वैल्यू इंडेक्स नंबर है, इट इज अबाउट अ वैल्यू इंडेक्स नंबर इज द रेशियो ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी in the current year and its value in the base year.
A value index number of a combined price and quantity by taking the product of price and quantity as the value. तो प्राइस इंडेक्स नंबर में केवल प्राइस कंपेयर होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में केवल क्वांटिटी कंपेयर होता है, बट वैल्यू इंडेक्स नंबर में प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों को, ठीक है, एक साथ लेकर फिर वो कंपैरिजन होता है. जब सम्स आएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा. अभी थोड़ा सा हम बेसिक्स कर रहे हैं. बेस पीरियड और करंट पीरियड. बेस पीरियड मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये आपका बेस पीरियड है कि आज 2021 का कुछ हमको फाइंडिंग करना है और 2010 इज अ बेस ईयर, तो 2010 को बेस करके हम कंपेयर करेंगे. करंट पीरियड जो अभी का पीरियड है उसको करंट पीरियड बोलेंगे. कुछ नोटेशन है वो आपको याद रखना है. स्मॉल पी जीरो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर. जीरो स्टैंड्स फॉर बेस, तो P मतलब प्राइस, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर. Q इज अ क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर. बट जैसे ही वन लिखूंगा वो लिखूंगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द करंट ईयर. Q1 क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द करंट ईयर. तो 0 फॉर बेस, 1 फॉर current, P for price, Q for quantity. W, small w is a weight assigned to a commodity. ये एक सम आएगा जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज के हमको वेट दिए रहते हैं, ठीक है, इसका मतलब उसका रिलेटिव इंपॉर्टेंस दिया रहता है. सो दैट वी आर गोइंग टू डू. एंड आई, इट्स सिंपल इंडेक्स नंबर. द इंडेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय आई एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्राइस रिलेटिव, ठीक है. और फिर एक फॉर्मूला दिया हुआ है P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है. तो एक काम करेंगे सबसे पहले, अब हम थोड़े फॉर्मूलेज और वो सब स्टार्ट करते हैं. लेट मी शेयर यू द नोटबुक. Okay, so I think this notebook is visible to all of you. Okay, so just a minute. I'm also sending you the books so that those who are not having the book, they can just go through it. Have you all got the books? Okay.
So now put a heading, index number, index number. Okay. So first method we are doing method 1, that is simple aggregate method. Write down along with me, simple aggregate method. Okay, so in this we will first we'll have a formula for price index number. मतलब using simple aggregate method price index number क्या होगा उसका फॉर्मूला. So price index number is denoted by capital P and then 0 1. Okay, price index number is denoted by capital P 0 1, and the formula is sum of, that is summation of prices of the current year upon sum of prices of the base year into 100. Yes, प्राइस ऑफ द करंट ईयर ऊपर P1 है नीचे P0 है इंटू 100. सो दिस इज प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला इन सिंपल एग्रीगेट मेथड. सिमिलरली वी हैव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. दो चीजें हमको पढ़नी है यहाँ पर, प्राइस इंडेक्स नंबर एंड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो प्राइस का ये फॉर्मूला है, क्वांटिटी का भी इसी तरीके से फॉर्मूला आएगा. सो यू विल राइट हियर quantity index number is Q01. Okay, and it is sum of all the quantities of the current year upon sum of quantities of the base year into 100. तो फॉर्मूला याद करने के लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, और थर्ड 3 टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं ना, प्राइस क्वांटिटी एंड CLI. वैल्यू इंडेक्स नंबर.
तो वो क्या होता है देखते हैं। सो थर्ड हेडिंग डालेंगे हम लोग इसके अंदर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स number. Okay, so it is denoted by capital V 01 equal to summation of P1 into Q1. तो प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ द करेंट ईयर, उसका प्रोडक्ट लेंगे, उसका सम अपॉन प्राइस ऑफ द बेस ईयर एंड प्राइस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर का प्रोडक्ट का sum will be your value index number, and same multiplied by 100. So these are the three formulae under the simple aggregative method. ठीक है. So our first exercise is based on the same simple aggregative method से ही हमको करना है. So then we can start doing it. So just please make a note of this, and if you are done with the writing part, I'll start the problem. Write down this formula.
यस स्टूडेंट्स, सो मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया है फिलहाल आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें लिखा हुआ है कि 1995 बेस ईयर है। ओके, आपको टेबल में दिया है कमोडिटी प्राइस इन 1995 और प्राइस इन 2000। क्वेश्चन में दिया था 1995 बेस है, इसके लिए इस प्राइस को P0 लेना है, 0 फॉर बेस, और दूसरे वाले प्राइस को क्या ले लिया हमने, करंट प्राइस ले लिया। PQRS और ये वैल्यूज, ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है और हमको पूछा है कि प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करो। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा ना प्राइस इंडेक्स नंबर का, कि प्राइस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू P01 एंड दिस इज द फॉर्मूला। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, P1 का टोटल चाहिए और P0 का टोटल चाहिए। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर P0 और P1 का टोटल निकाल लीजिए आप। तो ऐड करो, देखो कितना होगा, 5 + 4 9 + 2 11 + 8 19 9 1 कैरी 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 109। सिमिलरली इसका टोटल निकालो, 7 + 8 15 + 2 17 + 5 22 2 2 कैरी 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 + 4 14 + 4 18। प्लीज चेक द कैलकुलेशंस। सो बेस का 109 आया है और ये 182 आया है, या फिर जस्ट सब्स्टिट्यूट हियर। P1 is 182, this is 109 and then multiply by 100. Yes, चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। कॉलम बनाओ, टेबल्स बना लो, टेबल्स बना के उसके नीचे फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो। Are you also getting the same total or you are getting some different one? Same total, okay. तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। चेक एनीथिंग गेटिंग कैंसल। तो आई थिंक 109 182 किसी से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो हम डिवाइड कर लेंगे रफ में। 109 182 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा में जाएगा 109, फिर 12 - 9 3, इधर 7 बचेगा, फिर डेसिमल लग जाएगा और 0 आ जाएगा। अभी 109 मतलब 100 के नज़दीक है ना, तो आई थिंक 100 7 जा करेंगे तो 700 आएगा, बट 7 9 जा 63 हो जाएगा, यानी 763 हो जाएगा। तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो आई थिंक 6 विल बी परफेक्ट। 6 9 जा 54 एंड 6 1 जा 6, 10 - 4 6, 2 बचेगा, 12 - 5 7 एंड दिस इज 0। अगेन 0 आएगा, वापस 760 जैसा आया, तो 6 जा में तो 7 जा में 63 हो जाएगा ना, 763, तो वापस से 6 जा ये करेंगे कि 7 में ज़्यादा हो जाएगा, 654, देन 10 - 4 6, 5 - 5 0 and 1, again 1 0 will come। अब ये 1000 हो गया, तो 10 जा में तो 1090 होगा, 109 इंटू 10 विल बी 1090, तो डेफिनेटली ये 9 टाइम्स में जाना चाहिए। सो वी कैन स्टॉप इट हियर और यू कैन डू फॉर 1 मोर डिजिट। डेसिमल के बाद 4 डिजिट से हमको आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 जा में क्या होगा, 9 1 से 81 एंड 9, फिर 10 - 1 9 एंड देन 17 - 8 5, तो 590 होगा। 590 मतलब
फाइजा में कितना होगा देखो, आई थिंक ये 7 होगा, 7 में 15 है ना वो, 15 माइनस 8 इज 7, 790, मतलब ऑलमोस्ट 7 टाइम्स में जाएगा, 7 9 is 64, yes. So it means we here we got the answer as 1.6697 into 100. 100 का मल्टीप्लाई कर रहे तो डेसिमल विल शिफ्ट टू द राइट 2 digit, 166.97. This is the required answer of the price index number. Everyone understood? So please make a note of this. और हो गया लिखकर तो डन बोलो. Okay, so this is the first problem. I hope you all have understood. Is it very simple बच्चों? क्या लगता है? Easy है? Yes. Okay. So now we will move ahead and we'll do few similar type of problems. ये जो डिवीजन का कैलकुलेशन है मैं अब इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए मैं वहाँ पर छोड़ देता हूँ, ठीक है? बाद में आपको पीडीएफ भेजूंगा तो आपको जरा इजी हो जाएगा, समझ लीजिएगा. हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा करके देखते हैं. सेम प्रॉब्लम है, फर्स्ट सेकेंड इज ऑल्सो सेम, थर्ड. चलो ठीक है, फिफ्थ वन करेंगे हम लोग अभी. फिफ्थ वन सारे एग्जैक्टली सेम है. अभी देखना, फिफ्थ भी करेंगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. Start writing. So first data is given as commodity, then unit is given, then price in year 2000, and then price in year 2006 is given. In 2006. See, in exam, it's not compulsory to have all the columns, right? कमोडिटी लिखा, प्राइस और ये लिख दिया तो भी चलता है, ठीक है? और समटाइम्स कमोडिटी यूनिट नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, डायरेक्टली P0 P1, ठीक है? सो राइट नाउ वी आर डूइंग दिस प्रॉब्लम. तो अभी क्वेश्चन तो मुझे लिखना पड़ेगा पूरा, क्योंकि इट टेक्स टाइम ना राइटिंग एवरीथिंग. बट PQRS तो ठीक था, बट अभी इतना सारा डिटेल लिखना कौन है? तो डायरेक्टली P0 P1 भी लिख सकते थे आप इन सोल्यूशन. मिल्क
100 x g किलोग्राम लीटर loaf dozen and teen. Here it is 27, 30, 25, 10, 24, 250. Check the values if somewhere I'm wrong. क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 90 को बेस लेना है. 90 लेकिन यार इसमें 90 का तो डेटा ही नहीं है. अच्छा मैंने रॉन्ग लिखा शायद. ये जो पहला वाला ईयर है वो 1990 है, एक 1990 है और दूसरा वाला 1997 है. ठीक है, तो हम किसको एज्यूम करेंगे अभी आप सबको समझ में आ गया होगा. तो ये मेरा P0 हो जाएगा क्योंकि दिया हुआ है 90 को बेस लेना है, तो दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा. टेल मी द टोटल ऑफ P0 एंड P1. कुछ भी नहीं, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है. ठीक है, यस. सो स्टार्ट करो और मुझे आंसर बताओ, टोटल बताओ पहले बस. Tell me the total students fast. P0 total and P1 total. Chalo, P0 someone said 366 and P1 Samiksha saying 468. So come on, please all of you verify this. Okay, then try to cancel if this is right, because 2-3 of you have given the same answer. So considering you are right and cancelling them, so first is 2 1s are 2 8s are 2 8s are. This is 2 2s are 3s are 4s are. Again 2 9s are 2 4s are 2 1s are 2 1s are 2 7s are. ठीक है, तो आई थिंक नाउ वी कैन नॉट कैंसिल 94 117, ये तो नहीं कैंसिल होगा. So I left with 94 divided by 117 into 100. अभी डिवाइड करो. 94 को 117 से डिवाइड करो. अच्छा, एक मिस्टेक मैंने कर दिया. P1 देखो ध्यान से. P1 is the second column. Yes, no one have realized it. So this is the normal mistake which we can do in the exam also. कि हम लोग क्या कर लें कि पहले वाले कॉलम को हम पहले लिख दें और फिर ये बाद में. बट ये P0 और ये P1 है, तो ऊपर P1 होना चाहिए और नीचे P0 होना चाहिए. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? यस. सो आई विल हैव टू चेंज इट. तो अच्छा हुआ मिस्टेक हुआ मुझसे. ऐसा हम भी करते तो हमसे भी वही हो जाता. सो P1 ऑलवेज देख के लिखो कि P1 किधर है. 468 है एंड देन दिस इज 366 into 100.
एक बार वापस से कैलकुलेट करते हैं. So it was 2 2s are 2 3s are 2 4s are 2 1s are 2 8s are 2 8s are 2 1s are 2 1s are 2 7s are 2 9s are 2 4s are. So we got here 117 divided by 94 into 100. समझ में आया यहाँ तक? Okay. Now let us divide and find out. 117 को 94 से डिवाइड करना है, तो पहले तो 1 टाइम्स में जाएगा 94, राइट. Then it will be 17, 7 minus 4 3, 11 minus 2 0 हो जाएगा, डेसिमल पुट करेंगे. Now 94 is near to 90, तो 92 सा 93 सा ज़्यादा हो जाएगा. 93 सा 27 होता है, 2 सा करेंगे, 2 4 सा 8, 2 9 सा 18, 10 minus 8 2, 12 minus 8 4, 0 हो जाएगा. ये 420 हो गया. वापस 9 1 सा 9 2 सा 18, 9 3 सा 27, राइट. 36 45 कितने टाइम्स में जाएगा? चलो डिवाइड करके मुझे बताओ जल्दी से, फास्ट. फाइव टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा ना. समीक्षा 7 कैसे बोल रहे हो? 420 को डिवाइड करना है 94 से. 9 5 सा 45, तो 5 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, तो ये तो 4 होगा. 4 4 सा 16, 1 कैरी, 4 9 सा 36 प्लस 1 37. तुमने शायद पीछे का आंसर देख लिया, इसके लिए तुम ऐसा बता रहे हो. 7. नेक्स्ट 10 माइनस 6 4, 11 माइनस 7 4, वापस 440. 440 मतलब 9 5 सा 45 ज़्यादा हो जाएगा, वापस से 4 ही होगा. सो 376. 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 6 7 6, 640. ये कितने टाइम्स में जाएगा? 9 6 सा 54, राइट. 9 7 सा 63 हो जाएगा, तो आई थिंक 6 टाइम्स. 4 डिजिट मिल गया, तो वी कैन जस्ट स्टॉप देयर. So this will be 1.2446 into 100, right? So the final answer will be 124.46 is your P01. Have you all understood how I did this problem? So please complete this, come on.
Done? Acha. There is this correction in the calculation here at one place. I have divided by 2. It should be 3, 2 ones are 2 8s are 16, and then 2 8s are in a 2 3s are 16 हो जाएगा, right? 2 3s are, and then 183. So if I divide by 117, so what will I get? वो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 234 है यहाँ पर अभी. समझ रहे हो क्या आप लोग? तो कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ है, उसको चेंज करना पड़ेगा. देख लो परफेक्ट है क्या अभी. That is why I asked you all to try it by your own. 2 2s are 2 3s are 2 4s are 2 1s are 2 8s and 2 3s are. ठीक है. Now 2 3 4 is 3 से divisible, ये भी 3 से divisible है. तो 3 7s are 21, 3 8s are 24. यहाँ पर 3 6s are 18, 3 1s are, right? So I think now I'll be getting 78 upon 61 into 100. तो ये कैलकुलेशन करो जरा. 78 अपॉन क्या होगा? Let's divide 61 1s are 61, 7 7 minus 6 1, 0.0. 60 का टेबल 6 का टेबल पढ़ो. 6 3s are 18, ज़्यादा हो जाएगा 3s are में. 2s are 2 1s are 2, 2 6s are 12. 10 minus 2 8, 6 minus 2 4 0. 6 6s are 36, 6 7s are 42. So 7 1s are 7, 6 7s are 42. 10 minus 7 3, 7 minus 2 5 0. तो अभी क्या होगा? 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा. तो 6 8 जा लेंगे. 8 8 6 जा 48. 10 minus 2 12 minus 8 4 4 20 बचा. तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 जा ज़्यादा हो जाएगा. So I think this will be the correct answer. Please check all of you. 1.2786. into 100. So 127.86 is P01. Okay. So I think you all have made the correction in this problem. Now the next problem. See the textbook. The first 7 questions were based on first 7 questions are based on price index number. So you can do rest of the sums by your own as a homework. ठीक है. Up to 7. 7 के बाद 8 से लेके 13 तक है प्राइस इंडेक्स नंबर वाला. ठीक है. प्राइस इंडेक्स नंबर. और नहीं 6 7 8 9 प्राइस है. उसके बाद लिव इन इंडेक्स नंबर है. तो 7 8 9 भी वही है. एक क्वेश्चन इसमें से करते हैं हम लोग. 9th प्रॉब्लम जैसे करते हैं. 9th वन.
नाइन्थ में वी हैव गिवन विथ कमोडिटी, देन बेस ईयर क्वांटिटी लिख ही दिया है बेस ईयर, और लिखा है क्वांटिटी, तो इसका मतलब ये Q0 है। फिर लिखा है करेंट ईयर क्वांटिटी, so that will become Q1, and then the data given is A, B, C, D, E। वैल्यूज लिख लेता हूँ मैं, जल्दी से कॉपी करो क्वेश्चन। ठीक है, टेल मी द टोटल, क्योंकि अभी इसमें क्या फाइंड करना है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है, तो उसका भी तो फॉर्मूला हमने किया है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, कैपिटल Q01 सम ऑफ Q1 सम ऑफ Q0 इंटू 100। चलो टेल मी फास्ट Q1 और Q0 का टोटल। Okay, so many of you have given me the values here. So Q0 is coming out to be 1440, and this is 1740, correct है। सब्सिट्यूट देन, तो Q1 ध्यान से, पहले Q1 1740 1440 into 100। Now try to cancel them, so 0 gets cancelled। Now cancel by 2, so 2 sevens are 14, 2 twos are 2 8s are 16, 2 sevens are, ठीक है, 87 एंड 72 आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, 100 से भी कैंसिल होता है ऐसे 60 से, है ना, थोड़ा और छोटा कर सकते हैं अगर चाहिए तो। सो जैसे 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 36 होगा, फिर ये 2 से कैंसिल किया 50 होगा, 2 से 18 होगा, और 2 से 25 हो जाएगा। सो दिस वे ऑल्सो वी कैन डू।
So I think then it will be 87 into 25 divided by 18. तो मल्टीप्लाई कर दो पहले, ठीक है. यू आर रॉन्ग, कहाँ मिस्टेक है? Q1 1440 है क्या? अच्छा, तो किसी ने ऊपर लिखा ना 1400, मैंने तो कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने ऊपर ही देखा. अच्छा ठीक है. So it is 1440. It's only 1400. Sorry, I'll make the correction. 1400. Okay. So I think now it will be more easy then. So this is 1740 divided by 1400 into 100. Why is it easy? Because 20 automatically gets cancelled. फिर ये 2 से कैंसिल होगा तो 2 7 जा हो जाएगा. ये होगा 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 870. And I think now I can simply divide them. 870 divided by 7, 7 1 जा 7, 17 बचेगा, 7 2 जा 14, 30 बचेगा, 7 4 जा 28, 20 बचेगा, 7 2 जा 14, right? And then 20, 7 9 जा 63 7. So I think 124.29 will be your correct answer. Yes, everyone, please look at this calculation. सबको समझ में आ गया? ओके, ठीक है. तो दो टाइप के प्रॉब्लम हम लोग ने कर लिया. एक हमने प्राइस इंडेक्स नंबर किया और फिर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर किया. नाउ वी विल मूव अहेड for the last type of problem in this exercise, and that is value index number. So we can do the 10th problem. 10th one, उसमें बोला है वैल्यू इंडेक्स नंबर फाइंड करना है. यहाँ पर डेटा थोड़ा ज़्यादा दिया होता है. तो पहले तो कमोडिटी, उसके बाद आपको बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया रहेगा. तो बेस ईयर का प्राइस भी होगा और क्वांटिटी भी होगी, ठीक है. फिर सिमिलरली करेंट ईयर का भी ऐसा ही होगा. करेंट ईयर, प्राइस एंड क्वांटिटी. ओके, तो टेबल हम कुछ इस तरीके से कर देंगे. बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी में भी डिवीजन, और करेंट ईयर के प्राइस और क्वांटिटी. Now let me write down the data. A, B, C, D, and E. Right. So
बेस मतलब ये P0 हो जाएगा और ये Q0 क्योंकि बेस बोला है, और ये करंट बोला है, इसके लिए P1 और Q1 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी कुछ कॉलम्स बनाने हैं राइट साइड में, जरा जगह रखना। ये तो हमने बस क्वेश्चन का लिखा है डेटा। सो 30 40 10 50 20 2 16. Please check the values, what I'm writing. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी हमको फाइंड करना है वैल्यू इंडेक्स नंबर स्टूडेंट्स, राइट। तो पहले वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था, अगर आप रिकैप करोगे तो? यस, वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या था? एंड राइट हियर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, इसको डिनोट करते हैं V01 से, and the formula goes like this: summation P1 Q1 upon summation P0 Q0 into 100, यानी टोटल चाहिए P1 इंटू Q1 का एंड P0 इंटू Q0 का। तो हमको दो कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, एक P1 Q1 का और एक P0 Q0 का। ठीक है, तो बना देते हैं, चलो। P0 Q0 one column and P1 Q1 another column. अभी मल्टीप्लाई P0 Q0 का, तो 30 इंटू 40, सॉरी P0 एंड Q0 इन दोनों का मल्टीप्लाई, राइट। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 660 हो जाएगा। 16 4 जा 48, दिस इज 38, 12 5 जा 60, 600, 18 2 जा 56, 560। P1 Q1, 18 4 जा 72, 12 6 जा 72, 24 5 जा 120, 0 12 carry, 24 1 जा 12 plus 24 1 जा 24 plus 12 is 36, 16 6 जा 960, and this will be 25 6 जा 150, 15 carry, 75 plus 15 90। हमको टोटल किसका चाहिए, बस ये लास्ट का दो टोटल चाहिए। So this is 0 8 8 16, 16 plus 6 22 plus 6 28, and एक मिनट, just let me confirm, 6 6 28 correct। यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ, 8 आई थिंक 6 8 जा 840, 480 लिख दिया, यस 840। Now do the calculation, totaling to 0 10 18 plus 6 24 2 carry, then 8 8 16 16 plus 3 19 25 25 plus
कितना कैरी है यहाँ पर? क्या हो कर रहा हूँ मैं? ये 6 है, करेक्ट है, 640 ना, 16 फोर्जा 64, तो ये हो जाएगा 2840, अभी करेक्ट है। 25 नहीं, 28 होगा। टू कैरी डी है ना, and this total will be 0, 6, 6, 12 plus 4, 16, 1 carry, 19, 22, 29 plus 6, 36, 3660, and then ये फॉर्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल सॉल्व। सो क्या वैल्यूज है यहाँ पर हमको? P1 Q1 is 3660 divided by 2840 into 100. Solve them. So 0 0 gets cancelled. Then 2 से जाएगा तो 2 1 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, 4 जा, 2 जा. I think now it will not cancel. So it is 183 upon 142 into 100. डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। 183 को 142 से 1 टाइम्स में 142 140, ठीक है। फिर ये अराउंड 15 के नज़दीक है तो 15 3 सा 45 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स में जाना पड़ेगा डेसिमल लगा के। सो 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 10 minus 4 6, 10 minus 8 2, 3 minus 2 1, देन 0। 15 के टेबल में देखो कितना होगा, 15 6 सा 90, 105, 120, सो आई थिंक 8 टाइम्स में जाएगा ये। 8 2 सा 16, 1 कैरी, 32 plus 1 33, 3 carry and 11, 5210 1240 हो रहा है। एंड आई थिंक नाउ ऑल्सो 8 में जा सकता है ना, यस 8 टाइम्स 1136, 10 minus 6 4, 3 minus 3 0 1, 1 not 0 4 और फिर 0 आ गया, तो 8 में तो नहीं जाएगा क्योंकि 8 में 1136 होता है, तो 7 टाइम्स में जाएगा। तो बस दैट्स ऑल। सो इट विल बी 1.2887 into 100, right? So your final answer will be 128.87. Everyone understood? समझ में आया ये कैसे करना है हमको वैल्यू इंडेक्स नंबर के क्वेश्चंस को? हाँ, जल्दी से नोट कर लो एंड लेट मी नो इफ इट इज डन।
So it's done now. Let me go back to the textbook. Okay, all of you see the textbook now. See, we did few problems of price index number. तो ये जो फर्स्ट से लेके ये सारे प्राइस वाले हैं, सब बेस ईयर करंट ईयर दिया हुआ है. उसके बाद 8th 9th क्वांटिटी इंडेक्स नंबर वाले. फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. 8th 9th 10th 8th and 9th. एंड फिर 9th के बाद सी फाइंड द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर. मतलब 10th 11th ये दोनों वैल्यू इंडेक्स नंबर है. तो आई थिंक 11th तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. इज इट क्लियर एवरीवन? देखो जैसा हमने अभी किया 9th वैसा ही है. P0 Q0 P1 Q1. ठीक है. लास्ट के दो प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं. क्या लिखा हुआ है? 12th प्रॉब्लम. एक्स फाइंड करना है. प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है 125. तो करना कुछ नहीं है. प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है ना, तो जो हम प्राइस इंडेक्स नंबर के लिए काम करते थे वो यहाँ पर करेंगे. ठीक है. तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे इसको. तो जरा क्विकली स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को. प्रॉब्लम नंबर 12. एक्स का वैल्यू निकालना है. करेक्ट. सो क्वेश्चन नंबर 12. बेस ईयर मतलब P0 और करंट ईयर मतलब P1 ये दोनों दिया हुआ है. 8 12 16 22 18. P1 दिया हुआ है 12 18 X 28 and 22. राइट. अभी वी ऑल नो कि प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है. प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय P01 P1 का टोटल अपॉन P0 का टोटल इंटू 100. तो हम इसका टोटल निकाल लेते हैं. तो 8 + 2 10 16 + 2 18 + 8 16. तो 3 4 5 26 और +2 होगा तो 7 हो जाएगा. 76 हो गया ये. यहाँ पर 28 + 22 विल बी 50 60 70 80. So I think this will be x + 80. And now whatever values we have उसको पुट करो. क्वेश्चन में प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है कितना? 125. और अभी हमने सब निकाला. P1 का टोटल है x + 80. P0 का टोटल है 76 × 100. 76 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा. 100 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड कर लेगा. तो ये ऐसा हो जाएगा. अब कैंसिल आउट करो जो भी कुछ कैंसिल हुआ है. तो 25 5 ज़ा 125 25 4 ज़ा. फिर 4 से कैंसिल. 4 1 ज़ा 4 4 4 9 ज़ा 36.
तो 19 5 95 हो जाएगा. Yes, so it will become 95 equal to x plus 80. So x equal to 95 minus 80 and it means 15. तो ये आपका फाइनल आंसर है. सबको समझ में आया? Everyone understood? चलो जल्दी से कंप्लीट कर लो, फिर एक 13 प्रॉब्लम है उसको भी कर लेते हैं. चलो डन एवरीवन. ओके, नाउ द 13 प्रॉब्लम, वो भी उसी टाइप का है. हमको प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है 120, तो हमको फाइंड करना है. 95 अ बेस, तो P0 दिया है, P1 दिया है, ये सब आप करोगे, मैं केवल डेटा लिख रहा हूँ. 95 y 80 35 116 74 92 and 42. Find out the total. After that, जैसा हमने किया, प्राइस इंडेक्स नंबर, that is P01 summation of P1 upon summation of P0 into 100. प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन कितना, 120. आप इसका टोटल निकालोगे, पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा. सो 80 प्लस 95 प्लस 35 इज 130. 130 प्लस 80 इज 210 एंड y है तो y प्लस 210 हो गया. और ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14, 1 कैरी, 2 plus 7 9 9 18 plus 4 22, 2 carry, this will be 324. सब्स्टिट्यूट करो, ये 324 और ये y plus 210. y plus 210 को इस साइड भेज दिया क्योंकि वो उधर डिवाइड कर रहे हैं, और 120 को इस साइड भेज दिया. बाकी सब एज इट इज. अब बस कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 0 0 कैंसिल, देन 2 6 जा, 2 5 जा कैंसिल, फिर ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा, 6 5 जा 30, 6 4 जा हो जाएगा, राइट. सो यू विल गेट y plus 210 is equal to 5 4 जा 20, 270. So 270 minus 210 will be 60. This is your final answer. Understood everyone? कैसे किया हम लोगों ने?
Please complete this and let me know if it is done. Okay. So in homework before my lecture, all the questions of the first exercise is to be solved in line. अभी जो आपने मेरे साथ किया वो तो प्रैक्टिस है, ठीक है? तो एक्सरसाइज 5.1 के वापस से सारे क्वेश्चंस, सारे सम्स सॉल्व करने एंड अपलोड ऑन गूगल क्लासरूम. आई विल आस्क to create a link. Okay, you have to upload your all solutions which you would have solved on Google Classroom. Is it clear? Okay, so Friday will be my lecture, so before Friday you have to upload it. Chalo, fine, thank you, bye bye.